Hello students, welcome to English grammar class. Our today's lesson is past continuous tense. I have already taught you present continuous tense and I hope you know the present continuous tense very well. You are well familiar with it. You can identify a sentence whether it is a present continuous tense or any other tense, and also you understand the meaning of present continuous tense, and you also know when to use present continuous tense. I am confident that you know all about it very well. So now today I am moving on to our next tense, that is past continuous tense. Now students, you suppose today is Sunday. You and your parents have gone to visit a local park. You and your parents have gone to visit a local park. It is afternoon. The time is afternoon. The sun is above head. You are in the park. Your parents are also in the park. Now you are watching many people in the park doing many activities. There are lots of people inside the park and they are doing different kinds of activities. For examples, I have enumerated here only 10 activities. Okay, I have enumerated here only 10 activities. For examples, number 1, visitors are standing in a queue to buy tickets. Visitors are standing in a queue to buy tickets. Now you know this is the present continuous tense. Are standing. Number 2, many cars are parking outside the park. Number 3, security guards are sanitizing the visitors at the gate, because it is COVID-19 time. Coronavirus has spread. The government has issued alerts and certain guidelines for the visitors to follow, wearing masks and sanitizing your hands. Okay. Number 4, now inside the park, children are splashing in the swimming pool. There is a swimming pool inside the park and some children are splashing, taking bath. Number 4, some children are riding in a toy train. In a park you have seen that there is a toy train and some children are riding in a toy train. Number 6, some people are traveling in a cable car. You know the cable car? Cable car is also called gondola, which moves at a certain height, and people love to sit inside the cable car and travel from one end to the other end and see the panoramic view of the park, wide variety of park. Okay, some people are traveling in a cable car. Now there are certain also some old people are sitting and watching the things around. There are old people who they are sitting on the ground and they are just watching. Boys and girls are enjoying a merry-go-round ride. merry-go-round ride जो गोल गोल घूमता है, ठीक है, उसको boys and girls are enjoying merry-go-round ride. Number 9, you are riding the paddle boat in a pool. In a pool you are riding the paddle boat and your parents are eating lunch. So these are the activities which you and your parents are
seeing in a park on Sunday and the time is afternoon. अब यहां पर आप सपोज कर लीजिए कि संडे था, आज संडे है, आप लोग पार्क में गए और सारा आप लोग देख रहे हैं. अब फर्ज कर लीजिए कि नेक्स्ट डे, अब नाउ टुडे इज मंडे, अब संडे चला गया, टुडे इज मंडे. फर्स्ट करिए, सपोज करिए टुडे इज मंडे, संडे हो गया, अब टुडे इज मंडे. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस. ओके, one specimen answer will be given here, and on the basis of that specimen answer you give answers to some other questions which I am going to ask you. So be ready. Now you note down all these sentences in your copy so that you will be able to answer my questions which I am going to ask. Now I am going to ask you a question, okay, and the answer is given, and that is a model answer. On the basis of that model answer you have to give answers to some questions that are asked here. You write your own answers, then I will tell you answers of these questions. You verify your answers and see whether they are correct or not. Now the question that is here, what were the visitors doing? What were the visitors doing on Sunday in the afternoon in the park? Remember, today is Monday. Today is Monday, and you and your parents had gone to visit the park on Sunday. Okay, and all the activities that you watched in the afternoon. So okay, so today is Monday, and the questions are asked. So what were the visitors doing on Sunday in the afternoon? Okay, the answer is given here. The visitors were standing in a queue to buy tickets. The visitors were standing in a queue to buy tickets. Now look here. Here the visitors were standing in a queue to buy tickets. This sentence is in the past tense, in the past continuous tense. In present continuous tense, what was the structure of the sentence? The structure of the sentence was is are plus verb ending in ing. Here the structure of the sentence is where plus verb ending in ing. मतलब पास्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, वेयर है यहां पर, और उसके बाद वर्ब में ing है. और आप लोगों को तो मालूम है कि वॉज का इस्तेमाल होता है सिंगुलर के साथ और वेयर का इस्तेमाल होता है प्लूरल के साथ. इतनी बात हम समझ सकते हैं कि आपको ये चीज मालूम है और ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बताते हैं कि आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इस तरह से इस्तेमाल होगा. वी वेयर, दे वेयर, यू वेयर, इस तरह से इस्तेमाल होगा. तो विजिटर्स वेयर स्टैंडिंग इन ए क्यू टू बाय टिकट्स. अब ये सेंटेंस दिस इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से क्या समझ में आता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई टेंस सेंटेंस लिखा हुआ तो क्या इंडिकेट करता है? अ सेंटेंस इन अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सजेस्ट that an activity was in progress in the past. Past continuous tense suggests that an activity was in progress in the past. An activity was going on at a certain time in the past. Okay? An activity was going on
at a certain time in the past. तो the visitors were standing in a queue to buy tickets. तो ये सवाल है, आइए उसका मॉडल आंसर है। इसी मॉडल आंसर को ध्यान में रखकर आपको इन बाकी सवालों का जवाब देना है। आप अपने सवालों, इन सवालों का जवाब अपने कॉपी में लिख कर रेडी रखिए। उसके बाद इन सवालों का जवाब हम वर्बली बोलेंगे, आप उसको मैचिंग कर लीजिएगा कि सही है या नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर द सिक्योरिटी गार्ड्स डूइंग, व्हाट वेयर द सिक्योरिटी गार्ड्स डूइंग इन द आफ्टरनून ऑन संडे। इन द आफ्टरनून ऑन संडे यहां लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रखिए, कीप इट इन माइंड that the question is asked about the question is asked about an activity on Sunday, about an activity on Sunday in the afternoon। माने संडे के दिन आफ्टरनून में जो एक्टिविटी हुआ था, about that activity the question is concerned। क्वेश्चन जो है संडे के रोज जो एक्टिविटी पार्क में हुआ था आफ्टरनून के टाइम में, उसी से मुताल्लिक है। संडे आफ्टरनून, रिमेंबर इट इन माइंड। तो व्हाट वेयर द सिक्योरिटी गार्ड्स डूइंग, उसके बाद उसी तरह से कि व्हाट वेयर द चिल्ड्रेन डूइंग इन द पूल, माने इन द स्विमिंग पूल। व्हाट वेयर द चिल्ड्रेन डूइंग इन द स्विमिंग पूल। नंबर उसके बाद है हु वेयर राइडिंग इन ए टॉय ट्रेन, who were riding in a toy train। What were your parents doing, what were your parents doing। उसके बाद है where were some people traveling, where were some people traveling। उसके बाद है what were boys and girls doing। उसके बाद क्वेश्चन है what were you doing। So these are the questions concerning activities that were in progress on Sunday afternoon। अब इसका आपको जवाब देना है। अब जवाब हम लिख कर रखिए, हम आपको अब आंसर हम बोल दे रहे हैं, हम आंसर बोल रहे हैं। ओके, आंसर को मैचिंग कर लीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल है कि व्हाट वेयर द सिक्योरिटी गार्ड्स डूइंग। अब इस मॉडल जो आंसर दिया हुआ है, इसी के तर्ज पर आपको लिखना है। अब यहां पर देखिए, अच्छा एक चीज यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर द विजिटर्स डूइंग। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये हेल्पिंग वर्ब पहले है, उसके बाद सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब पहले है, उसके बाद सब्जेक्ट है। आप जब जवाब लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर दीजिएगा, उलट दीजिएगा। माने सब्जेक्ट्स को पहले कर देंगे द विजिटर्स, और उसके बाद वेयर हो जाएगा, द विजिटर्स वेयर, उसको रिवर्स कर देंगे। इसलिए कि एवरी अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस या एवरी असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट विथ सब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब। हर सेंटेंस जो है शुरू ही होता है सब्जेक्ट से, और उसके बाद वर्ब आता है। ये तो आप लोग जानते हैं, फिर ऑब्जेक्ट भी आता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वेयर द विजिटर्स यानी हेल्पिंग वर्ब पहले है और उसके बाद सब्जेक्ट है। इसको आप उलट दीजिए, द विजिटर्स माने पहले हो गया और वेयर उसके बाद आ गया। कंटिन्यूअस उसमें चूंकि आईएनजी लगता है इसलिए आईएनजी हो गया। अब इसी को मॉडल आंसर देखो, आपको जवाब लिखना है। अब हम आपको जवाब बोल दे रहे हैं कि व्हाट वेयर द सिक्योरिटी गार्ड्स डूइंग। आंसर होगा, स्टार्ट करेंगे, द सिक्योरिटी गार्ड्स, the security guards were sanitizing the visitors at the gate। the security guards were sanitizing the visitors at the gate। उसके बाद है what were the children doing in the pool। आंसर होगा the children were splashing in the स्विमिंग पूल। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है कि हु वेयर राइडिंग इन ए टॉय ट्रेन। इसका जवाब है कि सम चिल्ड्रेन वेयर राइडिंग इन ए टॉय ट्रेन। यहां पर हो जाएगा, हो गया सम चिल्ड्रेन वेयर राइडिंग इन ए टॉय ट्रेन।
व्हाट वेयर योर पेरेंट्स डूइंग, व्हाट वेयर योर पेरेंट्स डूइंग, यहां पर जवाब हो जाएगा कि माई पेरेंट्स वेयर ईटिंग लंच, माई पेरेंट्स वेयर ईटिंग लंच। उसके बाद है कि व्हाट वेयर वेयर सम पीपुल ट्रेवलिंग, इसका हो जाएगा सम पीपुल वेयर ट्रेवलिंग इन अ केबल कार। अच्छा उसके बाद है कि व्हाट वेयर बॉयज एंड गर्ल्स डूइंग, बॉयज एंड गर्ल्स वेयर एंजॉइंग a merry-go-round ride. What were you doing? What were you doing? I was riding the पैडल बोट। तो ये हुआ आपका मॉडल, ये हुआ, ये जो सवाल लिखे गए हैं उसी का ये जवाब है। आप जवाब मिला लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि मेरा जवाब आपके जवाब के साथ, आपका जवाब मेरे जवाब के साथ जरूर मैचिंग किया होगा। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब इसके बाद हम लोग नेगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे कि हाउ टू राइट और स्पीक नेगेटिव सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस यूज करना आप जान गए हैं, बस उसी की तरह सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है। बस फर्क क्या है कि जहां इज है वहां वॉज हो जाएगा, जहां आर है वहां वेयर हो जाएगा। आपको तो वॉज वेयर का इस्तेमाल मालूम है कि आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, दे वेयर, वी वेयर, यू वेयर, ये अपना आप जानते हैं। और जिस तरह से इज नॉट, आर नॉट होता है, तो इज नॉट की जगह हम लोग लिख देंगे वॉज नॉट, ठीक है। और आर नॉट की जगह लिख देंगे वेयर नॉट या वॉज नॉट। पास्ट टेंस में क्या लिखिएगा, पास्ट टेंस में वॉज नॉट सिंगुलर के साथ होगा, आई वॉज नॉट, ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट। और फिर इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्लूरल के साथ हो जाएगा वेयर नॉट, वेयर नॉट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्लूरल के साथ होगा वेयर, जैसे ही, दे वेयर नॉट, वी वेयर नॉट, यू वेयर नॉट, ये है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सिर्फ कंसेप्ट के लिए हम कुछ आपको सवाल बतला दें, उसका आपको जवाब देना है। यहां पर एक मॉडल क्वेश्चन पूछा गया है, एक मॉडल आंसर यहां पर दिया हुआ है। तो इस मॉडल आंसर के ऊपर बेस करके आपको इन सवालों का जवाब दे देना है और कुछ नहीं करना है। एंड दे आर वेरी इजी। देखिए उसी एक्टिविटीज को याद रखिए कि यू हैव गॉन टू द park on Sunday in the afternoon and you had witnessed there certain activities done by people। तो पार्क में जो संडे के दिन जो आप आफ्टरनून में जो एक्टिविटीज होती जो आपने देखा था, उसी को यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आपको सवाल का ठीक ठीक जवाब दे देना है। देखिए सब पहला सवाल है, वेयर सिक्योरिटी गार्ड राइडिंग इन ए टॉय ट्रेन। क्या देखिए, where security guards riding in a toy train। आंसर क्या होना चाहिए? अब आंसर यहां दिया हुआ है नो, हम नो को नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट नॉट आंसर दे रही है। द सिक्योरिटी गार्ड्स वेयर नॉट राइडिंग इन ए टॉय ट्रेन। द सिक्योरिटी गार्ड्स वेयर नॉट राइडिंग इन ए टॉय ट्रेन। जो सवाल पूछा गया सवाल के मुताबिक जवाब देना है। सिक्योरिटी गार्ड्स they were sanitizing people at the gate, they were sanitizing people at the gate। so इसलिए जवाब क्या होगा कि नो। इस सवाल के हिसाब से क्या जवाब होगा कि नो, the security guards were not riding in a toy train। यहां पर ये were not riding ये नेगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब यहां पर 1 2 3 4 3 5 सवाल पूछे गए हैं। इन 5 सवालों का आप जवाब लिखकर रेडी रखिए, उसके बाद हम मेरे जवाब से आप जवाब मिला लीजिएगा। सवाल है, वेयर योर पेरेंट्स स्प्लैशिंग इन ए स्विमिंग पूल। वेयर योर पेरेंट्स स्प्लैशिंग इन ए स्विमिंग पूल। फिर सवाल है, वेयर यू राइडिंग इन ए केबल कार। वेयर यू राइडिंग इन ए केबल कार। उसके बाद सवाल है,
वेयर कार्स पार्किंग आउटसाइड ए मॉल, वेयर कार पार्किंग आउटसाइड ए मॉल। उसके बाद सवाल है वेयर ओल्ड पीपुल ईटिंग लंच। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वेयर योर पेरेंट्स राइडिंग द पैडल बोट। अब इसका आपको जवाब दे देना है, आप जवाब लिखिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपने जवाब आपका रेडी है। अब आप अपने जवाब को मेरे जवाब से उसको मैचिंग कर लीजिए, मैच योर आंसर्स विथ माय आंसर्स। तो सवाल है वेयर योर पेरेंट्स स्प्लैशिंग इन ए स्विमिंग पूल। नो, माय पेरेंट्स वेयर नॉट स्प्लैशिंग इन अ स्विमिंग पूल। My parents were not splashing in a swimming pool. Okay? Were you riding in a cable car? No, I was not riding in a cable car. Cable car में I was not riding in a cable car. Were cars parking outside a mall? No, cars were not parking outside a mall. No, cars were not parking outside a mall. Were old people eating lunch? No, old people were not eating lunch. They were sitting and watching the things around. Were your parents riding the paddle boat? No, my parents were not riding the paddle boat. Some people were riding the paddle boat. तो ये हुआ नेगेटिव। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस है इसी तरह से लिखेंगे। आप याद इसको याद रखिए, वाज नॉट वेयर नॉट, वाज नॉट वेयर, ये याद रहेगा जुबान पर, ठीक रहेगा। आप इसको इस तरह से याद रख लीजिए, आई वाज नॉट, ही वाज नॉट, शी वाज नॉट। इसको आप मेमोराइज कर लीजिए अच्छी तरह से। उसी तरह से मेमोराइज कर लिए, दे वेयर नॉट, वी वेयर नॉट, यू वेयर नॉट, कोई गलती नहीं होगा। तो ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम इसी में हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम बता दे रहे हैं, वेरी इजी है, कोई परेशानी नहीं है। आप इसी में देख लीजिए। आप इसको देखिए, इस सेंटेंस को, द सिक्योरिटी गार्ड्स वेयर, यहां पर देखिए द सिक्योरिटी गार्ड्स वेयर, ये असर्टिव, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या है, नेगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस होता है। अगर आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का पता नहीं, इफ यू डोंट नो अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होता है असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। जिसको ये पता नहीं है वो हमारा वीडियो वॉच करे। हमने अपने वीडियो पर जो है यूट्यूब में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलकर हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आप वहां पर उसको देखकर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को आप लर्न कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। खैर जो भी हो, यहाँ पर देखिए द सिक्योरिटी गार्ड्स वेयर, द सिक्योरिटी गार्ड सब्जेक्ट है और वेयर हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ है, ये उलट गया है, ये रिवर्स हो गया है। वेयर पहले हो गया है और हेल्पिंग वर्ब पहले हो गया और सब्जेक्ट बाद में हो गया है। वेयर सिक्योरिटी गार्ड्स राइडिंग इन ए टॉय ट्रेन, ये रिवर्स हो गया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। इसको याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यहां पर देखिए जैसे वेयर योर पेरेंट्स स्प्लैशिंग इन ए स्विमिंग पूल। अब यहां पर देखिए ये हो गया वेयर हेल्पिंग वर्ब, योर पेरेंट्स हो गया सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी। ठीक है, यहां पे देखिए वेयर यू राइटिंग, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट
राइडिंग मेन वर्ब में आईएनजी, वेयर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, कार्स सब्जेक्ट, पार्किंग मेन वर्ब प्लस आईएनजी, वेयर ओल्ड पीपल ईटिंग, वेयर हो गया आपका कोई हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब में आईएनजी हो गया। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस उसको रिवर्स कर देंगे। असर्टिव सेंटेंस है उसको रिवर्स कर देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब को रिवर्स कर देंगे तो असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। वेरी सिंपल, ऑलवेज रिमेंबर असर्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को रिवर्स कर देंगे तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट वर्ब को रिवर्स कर देंगे तो वो हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। बस इतना ही याद रखना, रिवर्स कर देना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को अगर उल्टा कर देंगे वर्ब प्लस सब्जेक्ट तो ये माने आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेसन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस तीनों बता दिया। याद रखिएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है एन एक्टिविटी दैट वाज इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। फिर से यहां सुनिए, the past continuous tense suggests an activity that was in progress at a certain time in the past. Thank you very much.